कल आपको टाइटैनिक फाइल मिली थी, किसी ने एक्सप्लोर किया? यस मैम, किया है। कुछ मतलब कर पा रहे हो? कुछ कंफ्यूजन है? क्या किया, कितने डेटा सेट्स रखे? आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद दिस फाइल ओनली टुडे. माइट बी you have refined your file in another way. So आप एक बार उसको मैच कर लीजिए. कोई कंफ्यूजन रहता है तो एक बार फिर से पूछ लिए. Might be you are having a different score of your model and I am using a different method. We have multiple options available to solve this particular problem, right? ठीक है. So let's move ahead. This is your data set using Titanic_LR, and I have imported this. This is the whole file. You see that we have passenger ID survived, so that we can check based on multiple independent feature that people are survived or not. Fine. It's based on logistic regression क्योंकि आपको survival check करना है. आपका जो dependent variable है that is survived. जिसमें 0 1 आउटपुट है. 0 is not survived, 1 is survived. Now we have to check कि कितने इंडिपेंडेंट फीचर्स आपके लिए जरूरी हैं और कितने इंडिपेंडेंट फीचर्स आप रखेंगे to create a model so that you can predict the survival of a particular the group of independent features, you can say. ठीक है. So first we check the info of our data, the basic things which we do for each and every data set and the shape of our data set. We have 891 index or the number of rows and 12 columns. So I'm using SNS here and you can use multi-plotlib as well. मैटप्लॉटलिब, सॉरी. सो यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो सर्वाइवल है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं काउंट प्लॉट जनरेट करके कि जो द होल डेटा सेट विच आई एम यूजिंग हियर इज tit underscore data. Based on the survived column, I need to check at what is the ratio of survived or not survived, so that I can get a bit idea. When you create a count plot for this, you see that we have 0 is for not survived. More than 500 people are not survived, and you see around 350 survived or 340, you can say. This is the picture which you get after analyzing your survived column. Any confusion? मैम SNS क्या है? Count plot. Count plot is I'm using Seaborn library here. आप matplotlib से भी कर सकते हैं because अपने Seaborn पे भी कुछ काम नहीं किया है, so I'm using Seaborn. This one. Import Seaborn as SNS. Further कुछ analysis phase में मैं Seaborn use करूंगी, कुछ matplotlib, so that you can get a idea कि अगर Seaborn में plot कोई बनाना है तो Seaborn में कैसे बनाएंगे, matplotlib में कैसे बनाएंगे. कुछ plots आपके Seaborn में अच्छे बनते हैं, कुछ आपके matplotlib में अच्छे बनते हैं, and it's up to you कि how you want to use. So इधर I'm focusing on Seaborn. So parallelly आपका logistic regression के साथ साथ आपका Seaborn भी हम लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? Okay. So count plot is available in Seaborn. Based on that, you can get a clear picture of that column. आप कितनी counting for the 0 and कितनी counting for the 1. क्योंकि survived column में आपके पास कितने कितने unique records हैं? 0 1. दो ही तो आपके पास unique records हैं survived column में. अगर आपके पास यहाँ पे 4 यूनिक रिकॉर्ड होते तो वो 4 प्लॉट्स बनाता ना यहाँ पे. एंड काउंट ऑफ ईच एंड एवरी प्लॉट. ठीक है. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि टोटल सर्वाइव्ड कितने थे और नॉन सर्वाइव्ड कितने थे. तो हमें एक आइडिया लगा कि पूरे डेटा सेट के बेस पे हमारा जो नॉन सर्वाइवल रेट है वो कहीं ज्यादा है सर्वाइवल से. अब हमें ये चेक करना है क्योंकि वी नीड टू फेच द इंडिपेंडेंट कॉलम्स एज वेल कि कौन से इंडिपेंडेंट कॉलम हमारे लिए जरूरी हैं. तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सर्वाइवल है. तो सर्वाइवल पे जेंडर का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है ये भी हम चेक करेंगे. अगर पड़ता होगा. हाँ बोलिए मैम. जो आपने SNS काउंट प्लॉट लिखा इक्वल्स टू सर्वाइव, मैम वो अंदर का सिंटैक्स समझा दीजिए.
यहाँ पे डेटा हमने इक्वल्स सिर्फ टू क्या किया है यहाँ पे आपको डेटा कहाँ किस डेटा सेट से यूज कर रहे हो वो तो आप डेटा में बताएंगे, टेट अंडरस्कोर डेटा सेट दी होल डेटा। इस डेटा सेट में से कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं वो आप एक्स में पास कर देंगे डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे वो डेटा आप सर्वाइव्ड भी दे सकते थे, लेकिन मैंने उसको अलग फिल्टर नहीं किया हुआ ना सर्वाइव्ड कॉलम को। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया है कि मेरा ये डेटा सेट है टेट अंडरस्कोर डेटा, इसमें से मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो वो मैंने एक्स में डायरेक्टली पास कर दिया है। आपका कोई भी कॉलम अगर यहाँ पे होगा, देखिए ये सिंटेक्स हमने इसलिए यूज किया कि मुझे इन केस मुझे किसी तीसरे कॉलम के लिए काउंट प्लॉट बनाना है तो मुझे सिर्फ यहाँ चेंज करना होगा। ठीक है मैम, ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो कलर आपका आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कौन सा सर्वाइवल का है कौन सा नहीं है? आपको एक बात पता है कि 0 किस चीज के लिए है? नॉन सर्वाइवल के लिए। ओके। 1 किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए। तो इससे ज्यादा और क्या विजुलाइज कराएगा ये काउंट प्लॉट? 0 आपका ये दिया है, 1 आपका ये दिया है। अच्छा, ऊपर वो दे रखा है ना डेटा के अंदर, ठीक है ठीक है। राइट ना, मैम डेटा जो यहाँ किसी पे ने देखा ही नहीं है, किसी ने घर जाके डेटा तो देखा नहीं होगा। आपको कल बोला गया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम इस डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे। मैंने डेटा सेट पहले आपको इसलिए भेजा सो दैट यू कैन हैव द आइडिया ऑफ योर डेटा सेट। आपको पता ही नहीं चलेगा डेटा में है क्या। देखिए आप एक चीज समझिए, जब तक आप डेटा सेट नहीं समझते आप ईडीए नहीं कर सकते हो। आपको उस डेटा को बहुत अच्छे से समझना होगा, आपको उसके सारे कॉलम्स पता होने चाहिए, उनके डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, तभी तो आप कोई इंडिपेंडेंट फीचर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें बहुत इजी लग रहा है आपको सब कुछ, क्योंकि आपने कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपको सारा फिल्टर डेटा मिलता है, आपको जस्ट मॉडल फिट करना है। मॉडल फिट करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप मैन्युअली कुछ नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, आप मॉडल फिट कर देते हो, दैट्स इट। इतना आसान नहीं है ये। वो डेटा हमने देखा था मैंने, लेकिन वो मैं उस चीज में कंफ्यूज था कि क्योंकि इसमें जो वो इंडिपेंडेंट वाले जो थे फैक्टर्स के एज है या क्लास है, उसको किस तरह के से चेक करेंगे कौन सा बेस्ट फिट बैठता है सर्वाइव के साथ। तो इसी के लिए तो हम ये पार्ट कर रहे हैं आज। वो आपने अपने एंड पे ट्राई किया तो आपने कुछ कॉलम्स रखे होंगे, आपको डेटा को देख समझ में आया होगा, कुछ तो आपको बिना एनालाइज करे ही समझ में आ जाते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये कॉलम भी है कि टिकट है और फेयर है, वी डोंट नीड दीज कॉलम्स, राइट ना, क्योंकि टिकट फेयर से मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मुझे पैसेंजर का क्लास दिया हुआ है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि टिकट क्या दिया हुआ है या फेयर क्या दिया हुआ है, और ना ही मुझे फर्क पड़ता कि किस नाम का पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि नाम से सर्वाइवल और नॉट सर्वाइवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, राइट। तो इसके लिए मुझे अलग से कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये एक कंसल्टेंट जो इस पर्टिकुलर डेटा को काम कर रहा है उसको पहले से पता है कि मुझे नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टिकट कॉलम की भी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे फेयर की भी जरूरत नहीं है अगर मेरे पास पी क्लास अवेलेबल है तो। और इवन आई डोंट नीड अ पैसेंजर आईडी एज वेल। पैसेंजर आईडी से सर्वाइवल का कोई लेना देना नहीं है ना, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन पैसेंजर आईडी एंड सर्वाइवल, राइट। क्लियर है ये चीज? यस। आप फर्दर देखिए हम क्या कर रहे हैं। पहले हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा कॉलम था? सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि बेस्ड ऑन द होल डेटा सेट नॉन सर्वाइवल और सर्वाइवल में डिफरेंस कितना है। तो हमें यहाँ इस प्लॉट से ये पता चल गया कि जो नॉन सर्वाइवल है वो सर्वाइवल के कंपैरेटिवली ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल है। सर्वाइवल जो है आपका वो 350 के अराउंड है, 340-50 के अराउंड अगर आप इसे देखेंगे तो, लेकिन जो आपका नॉन सर्वाइवल है वो मोर देन 500 है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा ये सर्वाइवल है इसका और जेंडर जो मेरा एक कॉलम है उन दोनों में क्या एसोसिएशन है। सो आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो मैं ह्यू एक कीवर्ड हम यहाँ यूज करते हैं जिसमें अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो काउंटर प्लॉट में तो आप दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी जो पूरे डेटा सेट में मेरा जो काउंट प्लॉट जनरेट होगा तो सर्वाइवल के जितने भी यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे वो, कंपैरेटिवली जेंडर के जितने यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे वो। सो जेंडर में हमारे पास 2 यूनिक रिकॉर्ड्स है, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सर्वाइवल रेट मुझे दे देगा वो। मैम यहाँ पे हुई आपने जो लिखा है वो इनबिल्ट है क्या?
हाँ इनबिल्ट है, आप सिर्फ टैब प्रेस करोगे ना एसएनएस काउंट प्लॉट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अब ये देखिए, ये द होल डेटा सेट, उसमें मैंने 2 कॉलम्स यूज किए हैं, तो आपको यहाँ पे मुझे ये देखना है कि सर्वाइवल और नॉट सर्वाइवल में मेल फीमेल से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेल है तो नॉट सर्वाइवल ज्यादा है आपका, फीमेल है तो सर्वाइवल ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। सो हियर यू कैन चेक कि जो आपका नॉट सर्वाइवल है वो मेल के लिए ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और जो सर्वाइवल है वो आपका फीमेल के लिए ज्यादा है। और दोनों में जो नॉट सर्वाइवल है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है मेल और फीमेल में, तो मोस्टली मेल नॉट सर्वाइव्ड। तो आप देखिए, जब आप टाइटैनिक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा। आप देखिए कि मेल का जो रेट है नॉन सर्वाइवल का, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? माइट बी दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर फैमिली, तो अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में वो सर्वाइव नहीं हुए। आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पता चल रहा है कि मेरे लिए ये जो जेंडर कॉलम है ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल का इम्पैक्ट जेंडर कॉलम से पड़ रहा है। ये क्लैरिटी आपको मिली? पहले आपका सिर्फ सर्वाइवल और नॉट सर्वाइवल को आपने प्लॉट किया था, अभी सर्वाइवल नॉट सर्वाइवल को बेस्ड ऑन जेंडर चेक कर रहे हैं आप। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी फॉर दिस पार्ट? क्योंकि मुझे देखना है कि डू आई नीड टू पुट जेंडर कॉलम एज इंडिपेंडेंट और नॉट, और डू आई नीड दिस कॉलम फॉर बिल्डिंग अ मॉडल और नॉट। सो आई नीड टू चेक दैट, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये मुझे डेटा को देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ आपने देखा बीइंग अ मेल पीपल आर नॉट सर्वाइव्ड, जो फीमेल का सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा है, नॉन सर्वाइव्ड फीमेल कम है कंपैरेटिवली मेल के। अब हमें ये देखना है कि जो सर्वाइवल का इम्पैक्ट पैसेंजर की क्लास से कितना पड़ता है, दैट आल्सो आई नीड टू चेक। तो अभी मैं क्या करूंगी, कोई दूसरा कॉलम मैंने उठाया, पी क्लास, पैसेंजर क्लास, तो पैसेंजर क्लास हमारे पास 3 है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन सर्वाइव्ड हैं वो सबसे कम फर्स्ट क्लास वाले हैं, और सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट फर्स्ट क्लास का ही है। ये इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है आपको? और जो नॉन सर्वाइवल है वो सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास, राइट। और जो सर्वाइवल में अगर आप देखोगे तो सर्वाइवल में क्लास का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कि इक्वली सर्वाइव हुए हैं ऑलमोस्ट। जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का नॉन सर्वाइवल और सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे इस ग्राफ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो थर्ड क्लास है उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स सबसे ज्यादा थे, तो इसलिए उनका नॉन सर्वाइवल रेट भी ज्यादा है। क्लियर है ये चीज? सो अभी इस प्लॉट से आपको 2 इंडिपेंडेंट फीचर मिल गए, वन इज जेंडर, सेकंड इज पैसेंजर क्लास, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब एक हम हिस्टोग्राम बनाएंगे बेस्ड ऑन दी एज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्वाइवल का इम्पैक्ट हमारी एज कॉलम पे भी पड़ रहा हो। तो मुझे अपने पूरे डेटा में एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि हाउ एज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किस एज ग्रुप के लोग मेरे पूरे इस जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा है और किस एज ग्रुप के लोग कम है, सो दैट आई कैन चेक के आपके पूरे डेटा में बच्चे कितने हैं, आपके पास यंग यूथ कितना है, आपके पास जो ओल्ड पीपल हैं वो कितने हैं। सो आपने क्या किया, हिस्टोग्राम बनाया फॉर एज, तो आप यहाँ देखेंगे यंग लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, बच्चे हैं लेकिन मोर देन 50-45 से ज्यादा कम है लोग, 70 से ऊपर तो बहुत ही कम है, राइट। ऑल्दो चिल्ड्रंस आर देयर इन दैट पर्टिकुलर, उस पे आपके पास चिल्ड्रंस तो डेटा में अवेलेबल है, आपके पास 20 से लेके
45 तक की एज के लोग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 20 और 30 के बीच के लोग हैं, और 50 से ऊपर आपका ग्राफ कम होता जा रहा है। आप देखेंगे 70 से ऊपर बहुत कम लोग आपके पास हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको क्या पता चला कि मेरे पास जो डेटा है टाइटैनिक में ट्रेवल करने वाले लोग सबसे ज्यादा 20 से 40 एज ग्रुप के हैं। अब मुझे देखना है कि जो मेरा फेयर कॉलम है, फेयर कॉलम में भी इसको करने से पहले फेयर का भी हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। तो फेयर के लिए हमने ना बिन्स बना लिए हैं क्योंकि फेयर रेंज में। हाँ बोलिए मैम। जो डेटा दे रखा है उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज नहीं दे रखी है, मिसिंग रिकॉर्ड्स है, उनकी एज नहीं होगी तो मिसिंग रिकॉर्ड तो कहीं भी मिल सकते हैं ना आपको। नहीं मिल सकता है, और हमने उसे फिल भी नहीं किया ना, तो इसे प्लॉट किस तरह से करेगा हिस्टोग्राम? देखिए वो हमने फिल नहीं किया बट नेम तो है, 0 इज देयर। हाँ तो मिसिंग को उसने यहाँ पे दिखा दिया, और मिसिंग आई बिलीव बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, क्योंकि मिसिंग मैंने इसमें हैंडल नहीं किया है। अगर आप एज में देखेंगे तो मिसिंग नहीं है, बहुत कम मिसिंग होंगे, टोटल काउंट करके देख लेना बहुत कम होंगे, तो पहले हैंडल करके तब भी बना सकते हो ये, राइट। बट आई डोंट फाइंड दैट इम्पोर्टेंट कि मुझे वो चीज तुम्हें बताने की जरूरत है। यू हैव योर अप्रोच टू फिक्स दैट इशू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम बनाया फेयर कॉलम के लिए जिसे हम बिल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो फेयर है वो आपका जो इस रेंज में सबसे ज्यादा आपके पास डेटा पॉइंट अवेलेबल है, बहुत ज्यादा जो फेयर है उसके कम लोग हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई आपको कि जो थर्ड क्लास है उसमें ट्रेवल करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। मैम हाँ बोलिए। 177 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एज नहीं है, और ऑलमोस्ट जो हमारा डेटा है 800 समथिंग 61 और 91 व्हाटएवर, तो उसका आप लगा लो कि 20% अप्रॉक्स ये बैठ रहा है जिसमें एज नहीं है, तो हिस्टोग्राम क्या प्रॉपर्ली प्लॉट होगा? क्या होगा? 20% क्या हिस्टोग्राम जो प्लॉट हो रहा है जो मिसिंग एज के थ्रू, क्या वो करेक्ट है? क्योंकि 177 कैंडिडेट ऐसे Manish, my focus here is to let you know how to fetch the independent variable from that particular data frame. I'm not telling you here that how to fix the how to handle the missing records, that you already know. So that's why I'm telling you कि यहाँ पे मैं वो वाला part fix नहीं कर रही हूँ, and it's not the perfect logistic regression which I am creating you. I am just giving you the option to fetch the independent column. My target here is to fetch the independent column, not to handle the missing records and all. Okay, got it. तो वो चीज आपको पहले से पता है. Do I need to explain that as well? No. Fine. उस चीज को आप अपने लेवल. हाँ बोलिए. मैम यहाँ पे फिगर साइज 10, 15 है, ये क्या है? आपने ये एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आपका 10 है, ये वाई एक्सिस पे आपका 5 है, तो ये बढ़ा लिया और घटा लिया. आप इसको चेंज करोगे यहाँ पे और नहीं भी दोगे तो वो अपने हिसाब से भी ले लेगा. ये कुछ ऐसे दिखाएगा, तो वो मुझे कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा है, सो आई हैव पुट इट 10 या 8 हियर. ठीक है. Okay. तो फिगर साइज इज जस्ट फॉर दिस विजुअलाइजेशन पार्ट के आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं. ठीक है. अब फर्दर देखिए. हाँ बताइए. bin equals to 20 वो हाँ, बिन्स में हमने जो डिफरेंस रखा है ना 20 के बिन्स हमने रखे हैं फेयर प्लॉट के लिए. फेयर जो हमारा कॉलम है उसमें क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डेटा है, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड बिन्स. तो बिन्स का जो साइज रखा है वो हमने 20 रखा है. ठीक है. ये आप घटा बढ़ा भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये है कि फिर नंबर ऑफ जो आपके हिस्टोग्राम में जो बिन्स आएंगे, अगर आप इनको घटाओगे बढ़ाओगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क आ जाएगा. अब यहाँ देखिए फर्दर हम क्या कर रहे हैं. सिबलिंग्स एसपी जो हमारे कॉलम है, इससे मतलब है कि कितने लोगों के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं. मतलब जो भी ट्रेवल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है, उनके साथ एक है कोई बंदा, या कोई अलोन है, और हैविंग 1 और 2 और 3 और 4. मतलब दैट्स व्हाट वी वांट टू चेक. तो हमने जब इसको प्लॉट किया तो हमने देखा कि मोस्टली जो अकेले लोग हैं वो ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं.
किसी के साथ एक बंदा है, वो ग्राफ आपका अराउंड 200 है, और 2 लोगों के साथ जो ट्रेवल कर रहे हैं वो भी कम है, बट आगे देखोगे 3 4 5 6 7 के साथ बहुत ही कम आपके पास है। यू कैन इग्नोर दोज एज वेल। ठीक है। अब फर्दर हमने क्या किया, नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये है हमारा इसमें PARCH करके जो हमारा एक कॉलम है, इसमें इसका मतलब है नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में हम देखेंगे इंडिविजुअली ऑलमोस्ट इसके जैसा ही आएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में भी मतलब टोटल नंबर ऑफ लोग कितने ट्रेवल एक साथ कर रहे हैं उसका आपको ग्राफ रिप्रेजेंट होगा इसमें भी। ठीक है। फर्दर हमने क्या किया, ये भी हमने चेक कर लिया। अब हमने यहाँ पे हमने मिसिंग रिकॉर्ड्स को अपने हैंडल किया। अब देखिए इसमें मिसिंग रिकॉर्ड को आप पहले भी हैंडल कर सकते हो, लेकिन मिसिंग रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू हीट मैप विच इज फ्रॉम SNS। आपके पास पहले जो भी आपने चीजें सीखी हैं उसके हिसाब से आप मिसिंग अपने रिमूव कर सकते हो। आई एम कमिंग विद अ न्यू अप्रोच। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, SNS हमें एक हीट मैप देता है। हीट मैप में आप पूरे डेटा सेट के साथ हीट मैप जब डेवलप करेंगे फॉर इज नल, इज नल हमने यहाँ पे जब हीट मैप डेवलप किया आपने ऑलरेडी चेक किया है। ये डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में मुझे इज नल वाई टिक लेबल्स इज जस्ट द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग हीट मैप। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जितने भी कॉलम हैं उस कॉलम के मिसिंग हमें यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो जहां भी आपको व्हाइट ज्यादा दिख रहा है किसी कॉलम के कॉरेस्पोंडेंस, उसमें मिसिंग सबसे ज्यादा है। आप अगर पूरे डेटा सेट को देखो तो एम्बार्क कॉलम में मिसिंग सिर्फ 2 हैं, तो एम्बार्क में यहाँ 2 आपको विजिबल ही नहीं हो रहे हैं। ऑल्दो 2 आर मिसिंग देयर, बट कंपैरेटिवली K1 और एज के हमारे पास वो मिसिंग बहुत कम है। ठीक है। तो हम जब हमारे पास बहुत ह्यूज डेटा सेट होता है तो हीट मैप हमारे लिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू चेक दोज मिसिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि अभी जो आपने सीखा था उसके हिसाब से आप काउंट करते थे, तो यहाँ आपको एक काउंट के साथ आप विजुअलाइज भी कर लेते हो। तो जैसे मैंने देखा कि एम्बार्क्ड है, एम्बार्क्ड में मेरे पास मिसिंग है, इन केस मैं उन मिसिंग को फिल भी करा दूं मीन से या फिर किसी और दूसरी वैल्यू से, तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन होगा। बट जो मेरा केबिन कॉलम है इसमें बहुत ज्यादा मिसिंग आ रहे हैं, तो आई कैन प्लान टू ड्रॉप दैट कॉलम एज वेल। मेकिंग सेंस, राइट? तो हमने क्या किया, हमने इन मिसिंग को हैंडल किया सबसे पहले। अब हमने देखो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट भी बनाए हैं पैसेंजर क्लास और एज के लिए, सो दैट वी कैन चेक कि हर क्लास में किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा है। आप यहाँ देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो आप देखेंगे जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में यूथ बहुत है, राइट? यंग एज के लोग थर्ड क्लास में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, और जो थोड़ी एज ज्यादा है, मोर देन 40-50 तक की रेंज के, सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? तो हमें ये भी समझ में आ गया कि जो पैसेंजर क्लास है वो एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इस प्लॉट से आपको समझ में आ गया? ठीक है। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? अब हमने क्या किया, देखो केबिन जो मेरा कॉलम था, यू नीड दैट, इफ यू नीड दैट, मुझे नहीं लगता कि केबिन की मुझे इस डेटा सेट में जरूरत है, आई हैव ड्रॉप दैट कॉलम। मैम, हाँ बोलिए मैम ये बॉक्स प्लॉट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज? मैम ये बॉक्स प्लॉट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये जो बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट को देख के आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है। तो यहाँ देखिए कि बॉक्स प्लॉट किस रेंज में लाई कर रहा है। जो आपका पी क्लास का बॉक्स प्लॉट है 35 तक आपका लाई कर रहा है, और 35 में जो एवरेज लोग हैं वो 30 एज ग्रुप के हैं। ये जो बीच वाली लाइन है ये इसका एवरेज शो करती है आपको। अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास में ज्यादातर 28 से लेके 50 तक की एज ग्रुप के लोग ट्रेवल कर रहे हैं, और जो एवरेज एज है उनकी वो 38 या 39 आ रही है, जितने भी हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं। आप ये थर्ड क्लास में अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्लास में हमारे पास 30 और 20 के बीच के लोग सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, और एवरेज एज जो उनकी आ रही है वो 25 या 26 आ रही है। Any confusion for this part?
No, ma'am. ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे हीट मैप के थ्रू मिसिंग रिकॉर्ड फेच किए थे तो मुझे लगा कि केबिन में बहुत ज्यादा मिसिंग रिकॉर्ड है एंड आई डोंट नीड दैट कॉलम, सो आई हैव ड्रॉप दैट कॉलम। मैंने वो कॉलम अपने डेटा सेट से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप आप इन प्लेस ट्रू के साथ करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वही दिखाया। अब ड्रॉप करने के बाद मैंने फिर से हीट मैप डेवलप किया और वहां पे आप देखेंगे कि जो आपका मिसिंग रिकॉर्ड है, अभी आपका जो पिक्चर है हीट मैप की, वो इस पिक्चर से कुछ अलग है। दिस पिक्चर, राइट। सो ये पिक्चर हम हमेशा वी प्रेफर टू चेक इट आफ्टर। देखिए यहाँ पे मैंने नॉट अ नंबर ड्रॉप किए हैं इस डेटा से। पहले केबिन कॉलम को ड्रॉप कर दिया, जो मिसिंग रिकॉर्ड है वो हटा दिए हैं मैंने। तो वो आपका इस सिंटेक्स से कौन से मिसिंग रिकॉर्ड हटेंगे? मिसिंग प्लेस जो भी नैन वाले हैं, एज वाले। अभी आप समझे नहीं हो मैं क्या पूछना चाहती हूँ आपसे। यहाँ पीयूष, जो 177 थे शायद वो हट जाएंगे सारे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पूरी रो हटेगी ना? हाँ वही है ना इस केस में। तो मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। इन केस यू वांट टू हैंडल दोज, यू हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। क्योंकि आप अलग तरीके से फिर मॉडल डेवलप करके देखेंगे, आपके मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो आप वो अप्रोच भी ट्राई करेंगे। मैंने वो डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया है और फिर हीट मैप अप्लाई करके चेक कर लिया है कि अभी मुझे कुछ मिसिंग, सॉरी आई हैव टू कॉल दिस। सो अभी मैंने वापस इसको चेक कर लिया है कि जो मेरे मिसिंग थे वो रिमूव हो गए हैं फ्रॉम द डेटा सेट। सो वी हैव दिस हीट मैप अवेलेबल, सो नो मिसिंग। ठीक है। अब फर्दर मैंने हीट मैप के अलावा इसके थ्रू भी चेक कर लिया है। डॉट इज नल डॉट सम, जस्ट टू मेक श्योर। ठीक है। फर्दर हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा जेंडर कॉलम है, जेंडर कॉलम मेरा लेबल्ड नहीं है, नॉन लेबल्ड है, अनलेबल्ड आपके पास जेंडर कॉलम है। सो आई हैव टू लेबल दैट एज वेल। तो लेबलिंग करने के लिए आई एम यूजिंग पांडास गेट डमीज। सो मैंने गेट डमीज से जेंडर के लिए क्रिएट कर लिया है। स्पेलिंग भी हो सकता है। नाम का कुछ इशू है। फाइन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे हमने डमीज क्रिएट कर लिए फॉर दिस कॉलम। अब जब डमीज कैसे क्रिएट होते हैं, उस कॉलम में कितने यूनिक रिकॉर्ड हैं उतने कॉलम बनेंगे। तो जेंडर में हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड्स कितने हैं? दो। तो हमारे पास दोनों के लिए कॉलम जनरेट हो जाएंगे, फीमेल एंड मेल। अब ये जो दो कॉलम जनरेट हुए हैं उसमें जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर वो मेल से बिलोंग करता है तो वो 1 मेल में रिप्रेजेंट करेगा और 0 फीमेल में। तो जिस हिसाब से डेटा पॉइंट होंगे उस हिसाब से 0 और 1 आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं एक साथ एक बंदा मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को बिलोंग करेगा, ठीक है, राइट। सो डमीज हम जो भी हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम है उसके हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। अब हमने क्या किया, जब हमने डमीज बना लिए तो विल ड्रॉप दैट ओरिजिनल जेंडर कॉलम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम डमीज बनाते हैं तो हम उसका फर्स्ट कॉलम ड्रॉप, एक कॉलम ड्रॉप कर देते हैं। उससे क्या है कि आपका डेटा शॉर्ट हो जाता है एंड दैट्स अ टेक्निक विच वी ऑलवेज फॉलो। अगर लेट्स से आपके पास 10 कॉलम जनरेट होते हैं बेस्ड ऑन 10 यूनिक रिकॉर्ड, तो आप 9 कॉलम आपके पास बचेंगे, आप फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे। उससे क्या है कि अगर आप ये कॉलम ड्रॉप करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है इसका मतलब फीमेल को बिलोंग नहीं करता है, अगर 0 आ रहा है तो मुझे पता है कि वो फीमेल को बिलोंग करता है।
ठीक है, तो हमने वही काम किया है। यहाँ पे हमने ड्रॉप फर्स्ट यूज करके फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर लिया। आप सेकंड भी ड्रॉप कर सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड टू ड्रॉप फर्स्ट, फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा। अब हमने एम्बार्क कॉलम के लिए भी डमीज बनाए उसी तरीके से। एम्बार्क में मेरे पास 3 यूनिक रिकॉर्ड है। अब इसको भी, इसका भी एक कॉलम हम ड्रॉप करेंगे, वो हमने कर दिया यहाँ पे। फिर हमारे पास पी क्लास भी एक हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम है, इसमें हमने डायरेक्टली डमीज क्रिएट करके उसका फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दिया है। राइट, 1 2 3 3 क्लास है हमारे पास, तो हमने सिर्फ 2 कॉलम रखे हैं। किसी को इस चीज पे कोई कंफ्यूजन है? नो, सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप सेकंड लिखेंगे मैम, ड्रॉप अंडरस्कोर सेकंड। शायद सेकंड का नहीं है, फर्स्ट या लास्ट ही होता है, बीच से नहीं करोगे आप। अच्छा, बीच से नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अगर आप उनको रिप्लेस कर सकते हो कि जो सेकंड वाला उसको फर्स्ट बना लो। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जब इनके मैंने डमी वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, तो मैं क्या करूंगी, जेंडर, एम्बार्क्ड, पैसेंजर आईडी, मुझे नहीं चाहिए पैसेंजर आईडी, पी क्लास, नेम और टिकट, इन सबको मैं ड्रॉप कर रही हूँ फ्रॉम द एक्चुअल डेटा सेट। अब मेरा जो डेटा है, अब ये आया है डेटा, जो स्टार्टिंग में आपका डेटा चल रहा था उससे मैंने ये सारे हटा दिए। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, जो मैंने डमी बनाए उनको ऐड भी तो करना पड़ेगा मुझे, राइट ना। जो ओरिजिनल एम्बार्क, जेंडर और आपका पी क्लास कॉलम था वो तो मैंने हटा दिया, बट आई हैव टू ऐड डमीज एज वेल। मैम एक क्वेश्चन है, या फिर नाम का जो कॉलम है उसकी रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है? अगर हमारे पास क्लास है तो क्लास नहीं, वो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, मैंने जस्ट रख लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप उसे ड्रॉप भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हमने ना पैसेंजर क्लास ड्रॉप किया है, मैंने फेयर रख लिया, क्योंकि पैसेंजर क्लास को फिर हमने लेबल्ड किया है ना। तो इट्स अप टू यू, आप फेयर कॉलम को ड्रॉप करके बना लीजिए। मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने ड्रॉप नहीं किया उसे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हमने डमीज बनाए थे उनको कॉन्केटिनेट करके अपना फाइनल डेटा डेवलप कर लिया है। दिस इज आवर फाइनल डेटा। अब आप उस सिचुएशन में पहुंचे जहां से आप अपना मॉडल डेवलप करेंगे। सो दिस इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल सर्वाइव्ड, एज, सिबलिंग, पार्स, फेयर, मेल, एंड दीज आर द कैटेगोरिकल कॉलम। अब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। सो अब हमने क्या किया, एक्स और वाई अपने डिफाइन कर लिए। अब हम टेस्ट और ट्रेन स्प्लिट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने रखा है वो 33% का रखा है यहाँ टेस्ट में, बाकी रिमेनिंग आपका ट्रेन साइज में जाएगा। मैम इसको 20-80 भी कर सकते हैं ना मैम? कुछ भी कर सकते हो, मतलब 30-70 इज द बेस्ट रेशियो, बट इसको घटा बढ़ा भी सकते हो। ये हमारे पास आ गए। अब हम नॉर्मल अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मॉडल फिट करेंगे, एंड देन प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी में अपने एक्स टेस्ट पास करके ये भी चेक कर लोगे कि जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ है इस पार्ट के लिए, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक्स टेस्ट आपका ये जनरेट हुआ है ना, दिस वन। ये आपका एक्स टेस्ट है, तो एक्स टेस्ट की आपने डायरेक्ट प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी निकाली है। ये आपका एक्स डेटा सेट है। जब आप प्रेडिक्ट करोगे तो ये आपको डालने पड़ेंगे ना, जो आपने आपके इंडिपेंडेंट कॉलम्स थे। तो आपने ये फर्स्ट क्या है, एज है, SIBSP, पार्स, फेयर, मेल, QS23, ये सबके वैल्यूज यहाँ पास किए। उसके बेसिस पे आपको पता चला कि पर्सन सर्वाइव्ड। फिर आपने अपने मॉडल का ये स्कोर निकाला है, विच इज 81 और 77। पहले वो कुछ और था, अभी 77 हो गया। सो अभी आप इसमें चेंजेस करेंगे। यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडिपेंडेंट फीचर्स को कलेक्ट करना, बाकी यू ऑल नो। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। सो इट्स अप टू यू कि आप कितने कॉलम्स रखना चाहते हो और क्यों रखना चाहते हो। जितना अच्छा आपका मॉडल डेवलप होगा, जितनी अच्छी आप प्रेडिक्शन दे पाओगे, आपका एरर जितना आप रिड्यूस कर पाओगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, यू कीप ट्राइंग। ठीक है मैम, इसमें स्कोर से हमें क्या एनालाइज हुआ इस रिपोर्ट में? कौन से कोड से? जो स्कोर निकाला मैंने
इस स्कोर से हमारा जो मॉडल है वो 77% तक जा रहा है, तो मॉडल की जो एक्यूरेसी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। हाँ, तो 77% इज फेयर एनफ। मतलब इम्प्रूवमेंट के चांसेस अभी भी हैं, अभी भी आप इसको काफी इम्प्रूव करोगे, हम किसी दूसरी एल्गोरिदम से करेंगे तो माइट भी और चेंजेस हो जाए। अभी चेंजेस तो आपके इससे भी हो जाएंगे, अगर आप ये स्कोर भी चेंज करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला तो चेंजेस उससे भी हो जाएंगे। आप यहाँ देखिए, अगर आप इसको 20 करेंगे या फिर कुछ और स्कोर रखते हैं तो वहां से भी चेंजेस होंगे। आप रन करिए, देखा आपने 2 to 3% का डिफरेंस। तो वो चेंजेस तो आपके रहेंगे, आपके पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। नंबर ऑफ कॉलम जो इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं उनको अगर कम ज्यादा करें उससे शायद हाँ, उससे भी फर्क पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कॉलम से भी फर्क पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फेयर कॉलम है उसको हटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी सारे इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारे, अगर उनको हटाते हो तो उतना अच्छा मॉडल नहीं आप डेवलप कर रहे हो, क्योंकि डिपेंडेंसी तो है ना सर्वाइवल की, एज पर भी है, सिबलिंग पे भी है, आपके मेल फीमेल होने पर भी है, किस लोकेशन से उसने एम्बार्क किया उससे भी है, राइट? एनी कंफ्यूजन? नहीं मैम ठीक है। मैम एक मेरे को क्वेश्चन था, जो आपने पॉलिनोमियल रिग्रेशन में